So hi Khushi Pandey, how are you? Hello, Rohit. I'm good. How are you? I'm also good. So can you give brief introduction about yourself? Okay. So, my name is Khushi Pandey, and I'm a public speaker and a social worker. I'm working on different kinds of initiatives, which mainly focuses on underprivileged section of the society. Let me brief you about my projects which I'm working on. My first project is Project DAG, which means menstrual hygiene. We used to conduct menstrual hygiene sessions in the in the schools of government and with the slum area women. So we in the project DAG we used to conduct menstrual hygiene sessions for the girls of government school and for this the women's of slum area. In the session, what we used to do is keep first I used to conduct the session on menstrual hygiene, how to maintain body hygiene during these days, and after the end of the session, I used to distribute sanitary pads. So the like this we used to conduct this kind of project. Right now, in 15 slum areas, we have attached this sanitary welding machine in the Lucknow only, and we are looking for more collaborations, for more corporates to help us in this initiative, and we'll take this project ahead. My second initiative is I'm working on Project Annapurna. In Project Annapurna, we are working in two phases. First phase, we are till now I have distributed dry rations in the 12 villages of Lucknow, and in each village we have covered 650 people, 650 beneficiaries in each village. After that, in the second phase, what we used to do, I used to I've started the food drives in front of the government hospital. Motive of distributing food in front of the government hospital was ki matlab, like we don't used to visit to the government hospitals, right? Because we think we should get the proper time of the doctor, proper neatness and everything in the hospital. So we used to visit the private hospitals. But the people but the people who don't have that much good financial conditions, they used to visit the government hospital, right? And they don't have that much money that they used to purchase the food and eat it. So for the relatives of the patients who are admitted in the government hospital, we have started these food drives in front of the this government hospital, and the price of that full meal is rupees 2. That's Why good. we can give it for free as well, yeah. We can give it for we can give it for free as well, but the thing is, the cost we have put it, the nominal cost is rupees 2, just because there are some people who will not accept the food for free, Yeah. right? And who are there, like they don't want anything for free, they, so at least they can give rupees 2 some amount of the food, and they can take the food from ourselves, from our volunteers, or So the you are with. doing great work. Like I saw your profile and then I'm chasing you to have a podcast with you. So right now I just also want to collaborate with you, but we will talk it later about that. So uh, my first question is, can you take us through your journey as a social worker and how you first got involved in this field? Because as you are a business law student. या सो मैंने मतलब अभी मेरी जर्नी मैंने इसको शुरू कहाँ से किया था, तो आई डोंट नो कि आपने मेरा जो स्टॉक का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट जो मेरी स्टोरी आई थी उस प्लेटफॉर्म पे, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, आज सारी चीजें वेल सेटल्ड हैं जस्ट बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड Sorry to हमारे। interrupt you, but I don't saw your video because I just want to interact with you as a live person because I want to know your story from yourself. That's why I not saw your story at that point of time. Yeah. आ दैट्स ग्रेट विल टेल यू। सो मैंने शुरू किया था एक अंडर, बिकॉज मैं मेरी जो पढ़ाई हुई है क्लास 8 तक की, मेरी स्कूलिंग जो थी वो एक एनजीओ के थ्रू करवाई गई है। अब वो एनजीओ बंद है, वो एनजीओ नहीं चलता। बट मैंने सोचा था कि मैं अब बड़े होकर इस एनजीओ में भी वॉलंटियरशिप करूंगी, बट मुझे मौका नहीं मिल पाया, वो एनजीओ बहुत पहले बंद हो गया था। सो 8th क्लास तक मेरी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि एक स्कूल, एक एनजीओ वहाँ पे अपना एक प्रोग्राम चला रही थी शिक्षा का,
उसमें जब सब बच्चे जो अच्छे घरों से आते थे वो पढ़ लेते थे, तो हम लोग का स्कूल दोपहर से चलता था, 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में। तो जब ये स्कूल चलता था तो तब मैं वहाँ पे पढ़ती थी और जब मैं स्कूल जा रही होती थी ना, तो मैं अपनी मम्मी से ये सवाल अक्सर पूछा करती थी कि मम्मी, जब सबकी छुट्टी हो जाती है तब मेरा स्कूल शुरू क्यों होता है? तो ये मन में मेरे सवाल हमेशा रहता था, तो मम्मी कहती थी कि तुम लोग हम लोग एक्चुअली गाँव से आए थे यहाँ पे शहर। तो मम्मी कहती थी, "बेटा तुम लोग गाँव से आए हो और क्या कहते हैं, आप लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स को फ़ोकस करने के लिए, इसलिए आपको इस बैच में पढ़ाया जाता है।" बट जैसे-जैसे बड़े हुए, घर की कंडीशंस देखी, समझी, तो तो अब ये है कि हाँ, अब समझ आ गया था तब कि हाँ, तो बट मैंने उस समय ये डिसाइड किया था कि मैं इतने सारे लोगों का नहीं, बट एट लीस्ट मैं 1 से 2 लोगों का पूरा खर्चा उठाऊँगी एजुकेशन का अपनी सैलरी से। बट बाय गॉड्स ग्रेस कि आज मैं लखनऊ में एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल रन कर रही हूँ, जिसमें 82 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और मैं सिर्फ़ शिक्षा के लिए ही नहीं काम कर रही हूँ, मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ। तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ, मुझे कुछ करना है अपनी समाज सेवा के लिए, अपने लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है, जो सच में रियल बेनिफिशियरीज़ तक पहुँचना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत से एनजीओज़ हैं जो ज़रा-सा काम यस, यस। करते हैं और पोस्ट कर देते हैं, राइट? बट ऐसा कोई होना चाहिए ना जो जेन्युइनली काम करे, और वो जेन्युइनली कौन काम कर सकता है? वही काम कर सकता है जो इस चीज़ से बाहर निकल के आया हो। या दैट्स राइट। वो उनको पूरा या आइडिया होता है, जिस्ट होता है कि हमने वो देखा है तो या कैसा फील होता होगा उन लोग को। राइट, राइट, राइट। सो इस वज़ह से मैंने ये स्टार्ट किया और हाँ, यही मेरा मोटिवेशन सोर्स था। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर अस द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम योर जर्नी एज अ सोशल वर्कर एंड द इम्पैक्ट यू मेड्स इन द पीपल्स लाइफ? अ, अभी एक रिसेंटली एक मतलब लाइक एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव पे गई थी। एंड मतलब लाइक मैं जब भी कभी कहीं भी कोई सेशन करती हूँ तो मैं अपनी सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट कर देती हूँ कि आज यहाँ पे मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। तो जितने भी वॉलंटियर्स जो हेल्प करना चाहते हैं मुझे, वो आ जाएँ। तो मैं वहाँ पे गई और एक वुमन थी जो आई गेस 28 इयर्स की थी रही होंगी। और वो उन्होंने आके मुझे एकदम से गले लगा लिया। मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन खत्म ही हुआ था और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। फिर मैं वो बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी मुझे पकड़ के। तो और जब मैं रो रही थी ना तो उनके आँसू मेरे यहाँ पे नेक पे आ रहे थे। तो मतलब मैं शॉक्ड हो गई, मैंने उनको हग करा, मैंने कहा हुआ क्या? आप बताइए तो, आप बताइए तो। वो रो रही थी वो। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि उनके पति की 3 दिन पहले डेथ हो गई थी एंड वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रही थी। उनकी उनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़रूरत है उन्हें चीज़ों की। कपड़े भी मतलब इतनी यहाँ पे लखनऊ में बहुत ठंड हो रही है एंड उसके बाद वो बेचारी पूरे कपड़े नहीं थे उनके पास और साड़ी भी एकदम फटी-फटी पहन रखी थी। तो ऐसा लग रहा था कि बेचारी ये बहुत परेशान है। सो फिर डेफ़िनेटली हमारा जहाँ पे सेंटर है, तो मैं उनको अपने साथ लेकर मैं किसी दिन आऊँगी उनके साथ लाइव। अभी तो मुझे थोड़ा-सा रिकवर हो रही हैं चीज़ों से, तो उनको मैं अपने सेंटर लेकर आई। अभी वो हमारे साथ हमारे सेंटर में रह रही हैं, जहाँ पे बाकी सारे लोग रह रहे हैं। उनके बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे, एक लड़की है 12 साल की और एक लड़का है 15 साल का। वो उनके साथ रह रहे हैं और फिर उनको हम लोगों ने राशन का और उनके बच्चों के एजुकेशन का, हर चीज़ मैं बियर कर रही हूँ उनका। एक बस यही था कि ऐसा होता है ना कि वो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि मैं 3 दिन से, जिस दिन से उनके पति की डेथ हुई है, वो 3 दिन से लोगों के पास मदद माँगने जा रही हैं, बट कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया और उनको आज आज सुबह ही मेरे बारे में पता चला और उनको पता चला कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ कंबल बाँटने और वो आई और उनकी सारी चीज़ें सही हो गई अब। तो बस वो कहती हैं कि ब पता नहीं होता भगवान कब किसको किससे मिलवा दे। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा मोमेंट था कि किसी ऐसे इंसान को जिनको बहुत जेन्युइनली ज़रूरत थी, उनसे मैं मिली और मैं आज उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ रह रही हैं। सो या ओह ये नाइस नाइस स्टोरी। या तो हम लोग का भी एक मैंने भी स्टार्ट किया था रोहित एनजीओ, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का मेरा प्लेसमेंट जो पर्सनली आ रहा था वो अफेक्ट हो रहा था, दैट्स वाई। देन ओके देन इसीलिए मैं आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाया क्योंकि हम लोगों ने कम से कम उस टाइम एटलीस्ट हम दोस्तों लोग ने मिलके, बस 3-4 दोस्त मिलके हम लोगों ने 50 फैमिलीज को राशन दिया था, कपड़े ग्रेट। खरीदे एट दैट टाइम, जिस समय हुँ, पैंडेमिक हुँ। चल रहा था। दैट्स व्हाई आई राइट। कनेक्टेड विथ यू एंड देन सोचा कि आगे चल के और ज्यादा करूंगा मैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि फिर हाउ डू यू डिस्कवर योर पैशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड व्हाट स्टोरी यू यूजुअली लाइक टू शेयर विथ योर ऑडियंस? अच्छा, ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं ना स्कूल में बहुत शाय गर्ल थी, बिकॉज़ क्लास 8 तक तो एनजीओ के थ्रू पढ़ाई हुई, तो वहाँ पे तो इतना कुछ एटिकेट्स और ऐसा कुछ मतलब यस यस था यस। नहीं ना, कि क्योंकि इतने बच्चे नहीं होते थे। हमें क्लास में ही असेंबली दी जाती थी। क्लास में ही हम लोग लंच वाली प्रेयर कर लेते थे। अब उन बच्चों की तरह हमें ग्राउंड में तो लेके जाया नहीं जाता था। तो जब 8th के बाद पापा ने एडमिशन कराया एक गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे चीज़ें एकदम चेंज थी। जहाँ क्लास में सिर्फ 12 बच्चे हों, फिर उसके बाद ऐसे स्कूल में आ जाओ जहाँ एक क्लास में 56-57 बच्चे हों, तो एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हुआ 8th के बाद। और उसके बाद जब देखती थी ना बाकी कॉलेज के जो हेड गर्ल्स थे, क्लास 12th 11th के बच्चे की, वो बहुत बेफिक्री से माइक पे बोल रहे होते थे, प्रेयर्स बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था, बहुत शाय लगता था। बहुत ऐसा मतलब अगर जिस दिन होता था ना कि आज मेरी क्लास का टर्न है क्वायर ग्रुप में जाने के लिए या कहीं पे, मैं उस दिन एब्सेंट हो जाती थी। बिकॉज़ मुझे इतना माइक फ़ियर था, इतना ज़्यादा माइक फ़ियर था, मैं जाती ही नहीं थी स्कूल उस दिन। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जब एडमिशन लिया अपना लॉ का किया, फर्स्ट ईयर में ही मुझे लाइक मैं बहुत अच्छे से बाय गॉड्स ग्रेस एक टीचर ने नोटिस किया कि मुझे बोलना पसंद है। बस बचपन से ऐसा सपना था कि हाथ में माइक लूँ और लोग बैठे हों जो मुझे सुन रहे हों। एक हमेशा से ड्रीम रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी टैलेंट है, तुम बोल सकती हो, बस तुम शाय मत हो। कैमरा फियर भी बहुत ज़्यादा था, अब तो नहीं है बट पहले बहुत था। तो फिर उन्होंने मुझे चांस दिया ना, मैंने अपने यूनिवर्सिटी को बीएचयू में रिप्रेज़ेंट किया था। या सो शायद एडीआर टॉपिक था, कुछ टॉपिक था, मुझे टॉपिक नहीं याद है। वहाँ पे मैंने रिप्रेज़ेंट किया था, मैं सेकंड आई थी सारे लखनऊ के कॉलेजेस में, वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस समय सो कॉन्फिडेंस पूरा आ गया होगा कि अब वो जो डर फिर था वो उसके चढ़ा। बाद राइट, फिर उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया एंड अब आई डोंट गेस कि लखनऊ का कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी बची होगी और ऐसा कोई स्कूल बचा होगा जहाँ मेरे इवेंट्स ना हुए हों, डिफरेंट नाइस डिफरेंट नाइस। टॉपिक्स पे। या मेरा भी यही था कि मैं बचपन से नाटक करते थे हम लोग स्कूल में। हाँ, हाँ, राइट। तो उससे क्या हुआ था कि स्टेज फियर खत्म हो गया था और गाने का शौक था थोड़ा बहुत, तो वहां पे जो कोई नहीं गाता था तो मुझे सब अच्छा मान लेते थे, जबकि मैं गाता तो मैं सब। वो होता है ना कि अंधों में काना राजा, मतलब कोई नहीं गा रहा। अंधों में कोई नहीं गा रहा है तो मैं थोड़ा सा अच्छा गा रहा हूँ तो मैं जाता था, वो टीचर उचर सब प्रेज कर दिए, तो उस टाइम लगता था राइट, कि बहुत बड़ा सिंगर है। तो इस तरह मेरा भी स्टेज फियर खत्म हुआ था कि बचपन से राइट, स्टेज पे कोई भेज दे रहा था, एटलीस्ट टीचर लोग। राइट, राइट, राइट। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन जोस्टॉक? ये कैसे मौका मिला जोस्टॉक के बारे में? और फिर मतलब मैं आपका देखा, बस टाइटल देखा मैं, क्योंकि पूरा राइट। वीडियो नहीं देखा, मैं आपको रीजन बता दिया, बस टाइटल हुँ। देखा। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस जोस्टॉक का हुआ कैसे स्टार्टिंग से? अब बिकॉज़ जोश टॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और आई गेस हर इंसान सोचता है कि वो लाइफ में एक बार तो जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे जाए, बट लकीली मुझे 2 बार मौका मिल चुका है, मैं 2 बार जा चुकी हूँ और इन कन्वर्सेशन हूँ थर्ड राउंड के लिए भी। सो या अच्छा, सो दो उनके दो साथ जैसे, जस्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन, जैसे मान हुँ, लीजिए आप जा रहे हैं तो आपके साथ कोई गेस्ट जा सकता है ऐसे देखने के लिए, या फिर उन्हीं अ, को बुलाया जाता है? नहीं सिर्फ जो स्पीकर है उनको बुलाया जाता है, बिकॉज़ स्टोरी जब तक उनके पेज पे आउट नहीं जाती, आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते। ओके ओके सो दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे कोई और अलाउड नहीं होता है, ओके, स्टूडियो में। या सो मुझे ऐसा कुछ मतलब लाइक मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था जोश टॉक्स के लिए कि मैं उनको मेल किया अपने एंड से कि मुझे करना है। बट मैं एक दिन मतलब मैं सारे इनिशिएटिव्स में एक्टिव रहती हूँ। मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो प्रोजेक्ट बताया मैंने, प्रोजेक्ट दाग, उसकी वजह से मुझे चांस मिला था। जो पहला मेरा अपना सेशन उन्होंने मेरी स्टोरी देखी, उनको पसंद आई, उन्होंने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, उन्हें अच्छा लगा। लिंक्डइन पे मुझे रात में 2 बजे मैसेज आता है, वहाँ से कोई सौरभ, उनका नाम सौरभ तिवारी कुछ ऐसे था, सौरभ चौबे शायद, मुझे सरनेम नहीं याद है। तो सौरभ सर थे, उनका मैसेज आया कि खुशी हम आपका शूट करना चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी दुनिया के सामने लेकर आइए। सो तब तक मुझे कुछ ऐसा, लोग मुझे जानते नहीं थे, जोश टॉक्स की वजह से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया और उनका मैसेज आया तो हम लोगों ने कहा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए। मैंने शेयर किया और उन्होंने मेरे को फिर मैसेज किया, हमारी कॉल पे बात हुई। 2-3 दिन तक उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे प्रेज़ेंट करना है। फिर ये सारी चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ से गुड़गाँव बुलाया गया,
मैं यहाँ से गई एंड 2 दिन का शूट था, 2 दिन में खत्म हुआ एंड फिर स्टोरी लाइव हुई एंड स्टोरी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। 1 हफ्ते में शायद 10 लाख व्यूज़ आ गए थे। एंड स्टोरी बहुत अच्छा कर रही है यूट्यूब पे, आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सेकंड शूट तो मेरा आई गेस अभी दिसंबर में हुआ है, अभी लास्ट 22 2022 वो या स्टोरी वो भी आउट हो गई है, अब मैं हाँ, आराम हाँ, से वो देख भी सकता हूँ। हाँ, उसका उसका तो बहुत अच्छा रिव्यू गया है। पहले वाले से अच्छा दूसरी वाली स्टोरी का रिव्यूज़ आए हैं। सो या बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है एंड आई गेस जो लोग भी विश कर रहे हैं उन सबको जोश टॉक्स मिले। बहुत अच्छी रीच बढ़ती है आपकी। यस यस, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो अलग अलग तरह के लोगों को ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोग को ला रहे हाँ, फैक्ट ये है जोश टॉक्स क्यों आज इतना चल रहा है बिकॉज़ वो लोग रियल स्टोरीज़ कवर कर हैं, रहे हैं। रियल स्टोरी कवर कर रहे हैं। कोई ऐसी आपको वहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे ना कोई फेक स्टोरी नहीं फेक मिलेगी। फेक पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आपको बुलाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है। मेरा भी उन्होंने पहले पूरा बैकग्राउंड चेक किया था, जहाँ-जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने बेनिफिशियरीज़ से पूछवाया था, हर चीज़ करने के बाद वो आपको बुलाते हैं उस मंच पे। या तो दैट्स नाइस स्टोरी। आई आल्सो नॉट बिलीव कि मैं जो स्टॉक स्पीकर से बात कर रहा हूँ अभी, ये मैनिफेस्टो होता है कि आप जहाँ पे गए हो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, मैं आपको बुलाया, चेज किया, तो फाइनली रोहित ये। योर वॉइस इज़ हेलो, एम आई ऑडिबल? या हाँ, या नाउ यू आर ऑडिबल। मैं बोल रहा था कि फाइनली मेरा भी एक बिलीफ और सच हुई है कि चलो जो स्टॉक स्पीकर से मैं भी बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप भी बन सकते हैं। तो yeah, so next question is, can you share a time when you had to balance your work as a social worker with your studies in law? क्योंकि आप दोनों चीज मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सीरियसली बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ मैं इस टाइम पीसीएसजे की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। सो इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत परेशानियाँ होती हैं बट चीज़ है ना कि पता है मुझे लोग कहते हैं ना मेरा पैशन है, कोई चीज़ करना और वो 1 हफ्ते में वो एक चीज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बट आई डोंट गेस कि ये सही है। पैशन तो वो होता है ना कि आप कितने भी बिज़ी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो बट आप अपने पैशन को मत भूलो। कंटिन्यूअस काम करते रहो उस चीज़ के लिए। लोग कहते हैं ना, "अरे यार मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही?" सक्सेस कैसे मिल सकती है? अगर आप आज किया और हम 1 हफ्ते बाद करें, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी चीज़ को आप अगर सच में पाना चाहते हो, आप किसी चीज़ की सच में मदद करना चाहते हो, किसी चीज़ पे बहुत एकदम जुट के काम करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप कैसे कर पाएँगे? सो या मैंने ऐसे मैनेज किया था कि सपोज़ आज दिन का इवेंट है, आज दिन में हमें कुछ करना है किसी चीज़ पे काम करना है, तो रात में पढ़ाई करेंगे। और अगर रात में करना है, तो दिन पे आपने मुझे देखा होगा मैं रात-रात लेट नाइट्स तक ऑनलाइन रहती हूँ। बिकॉज़ वो चीज़ें ना काम को करने के लिए आपको करना पड़ेगी सारी चीज़ें ड्रिवन होना मैनेज। पड़ता है कि अपने आप को या पैशन वो अपने आप करवा भी देती है। जैसे भूख लगेगा तो हम लोग को खाना रा खाना ही पड़ेगा, तो वही चीज है हुँ, कि भूख है तो तुमको खाना खाना पड़ेगा। अब तुम खाना पानी पड़ेगा। पी लोगे वो अलग बात है, लेकिन तुमको भूख है, कैसे भी खा करके खाना पड़ेगा, वो खोजेगा ही आदमी, कुछ भी करेगा लेकिन अपना भूख मिटाएगा। राइट और वैसे ही क्या कहते हैं लाइक मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं टचवुड बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड उन्होंने मेरा हर टाइम साथ दिया है इवन माय डायरेक्टर्स एंड एवरीथिंग बिकॉज मैं अपने कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और अपने ये सारी चीज़ें मैं कर भी रही हूँ एंड अपने कॉलेजेस को मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ तो उनका कुछ ब्राउनी पॉइंट्स भी मुझे मिल जाते हैं एंड या उनका बहुत सपोर्ट है एंड आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल ये मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ बट या माय नहीं नहीं, एकेडमिक्स आर अपना इज अपने वेरी आप पे गुड जो बिलीफ रखता है फिर वही आगे बढ़ता है। या सो हाँ टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया उसकी अब वजह से अब आज आप दोनों चीज मैनेज करो, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैनेज कर रहे हो। राइट मुझे एक लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी थी, वो ठंड लगेगी कंबल देंगे। ठंड लगेगी सो कैन यू टेल इट स्टोरी वेयर यू, इस सिचुएशन में क्या होता है, ये डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? तो ऐसा कोई सिचुएशन जब आप सोशल वर्कर की तरह काम कर रहे होगे तो आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ा होगा कभी कभी टाइम पे, तो कोई एक सिचुएशन। राइट अच्छा आप लिंक्डइन चलाते हैं राइट आपने आपने जी, मुझे मोस्ट कनेक्ट किया एक्टिव। था सो मोस्ट एक्टिव आप मेरे कमेंट्स पढ़िएगा किसी दिन उसमें 90% तो पॉजिटिव होते 10% कमेंट्स निगेटिव होते
हम समाज सेवा कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं, बट लोग कहते हैं ना कि आप पोस्ट क्यों कर रही हो? कुछ 10% या 2% लोगों का कमेंट आता है ना, तुम दुनिया को, इवन कमेंट सेक्शन में भी आता है कि मेरे पास एक दो तो 3-4 लोगों ने बोला कि आओ घर पे ग्लव्स देने आओ, तुम्हें कंबल हम देंगे। तो दिस काइंड ऑफ चीज़ी कमेंट्स भी हमें मिलते हैं। और उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन पे भी ये होता है कि आप क्या कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हैं ये। मैं उन सबसे बस यही पूछना चाहती हूँ, अगर मैं दुनिया को दिखा रही हूँ तो आप भी करो ना, दुनिया देखना चाहती है। राइट? कहना बहुत आसान है। लोगों को जब मैंने अपना ये प्रोजेक्ट उजाला शुरू किया था साइकिल पे लाइट्स लगाने वाला, उसमें लोगों ने बोला कि एडवर्टाइजिंग कर रही है। आप कभी उस ठंड में बाहर निकलो तो लगाने के लिए, राइट? कहना तो आसान है, आप कह तो सकते हो, बट करना तो बहुत मुश्किल है। आप करो तो, आप निकलो तो। या बट वो बहुत कम लोग हैं, तो ये सारी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है। अगर हम कुछ करके पोस्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बट नहीं, हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं और हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर आज सकते अगर आप पोस्ट नहीं करती हैं। तो शायद मैं आप तक नहीं पहुंच पाता, या फिर कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं पहुंच पाता। अगर आप कर रही होती तो शायद ही कोई लोग आपको जान पाता। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है बताने के लिए मैं ये कर रही हूँ, तो मुझे सहायता करो, क्योंकि अकेले कोई नहीं कर सकता इतना कोई बड़ा। नहीं कर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। आज अगर मेरे पास 100 वॉलंटियर्स हैं लखनऊ में जो मेरे साथ मेरे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया वो मुझसे जॉइन कर पाए हैं। आज आप मेरे साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मुझे कैसे जान पाए? थ्रू दैट्स सोशल, सोशल मीडिया। राइट? तो मैं अगर पोस्ट ही ना करती, आप मुझे जानते ही ना, तो क्या आज ये पॉडकास्ट हो रहा होता? नहीं हो रहा होता। तो या दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स कि मुझे एक इवन ब्रेक कर देते हैं आके। इवन इन बिहार क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी लड़कियों को डिफिकल्टी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर। यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है, अदर जैसे दिल्ली में, वहां पे उन लोग को रिस्ट्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ नहीं है, पे राइट। रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वर्क ऑन इट। मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग फीमेल को, एक कैंडिडेट को ज्यादा बुलाता हूँ। तो मुझे भी आया था कि तुम सिर्फ फीमेल को ही क्यों बुलाते हो। तो मैं फीमेल हुँ, को इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि देखे कि वो फीमेल क्या क्या कर रही है। जैसे कि मैं कॉर्पोरेट दुनिया में हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि फिर बहुत ज्यादा पैकेज, जैसे गूगल में जॉब कर रही 50 lakhs का, 60 lakhs का, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो बिहार से, छोटी गांव से आके पढ़ी लिखी और फिर बनी हो। तो इस राइट। तरह मैं ये चीज प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे भी बैचलर्स मिले थे बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों से कि तुम सिर्फ लड़की के फेवर में होते हो। दैट्स आप ही करो, लोग उसको पोक करने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए आएँगे, एंड वो सारी चीज़ें आपको बहुत प्यार से इग्नोर कर देनी चाहिए। ये। तो मैं इग्नोर तो मैं और लड़की बुलाने लगा फिर। So next question is, can you paint a picture of your vision for the future? Like आपका फ्यूचर क्या है? आपने किस डायरेक्शन में सोचा है कि यही करना है फिर, या फिर लॉ में कुछ करना है? कुछ तो होगा सोचा आपने। राइट। मेरा ये है कि जैसे आज मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं 80 इयर्स की भी हो जाऊँगी, बट आई डोंट नो कब तक ज़िंदा हूँ, बट जब तक मैं अपने पैशन को नहीं छोड़ने वाली। कुछ भी हो जाएगा, मैं समाज सेवा करती रहूँगी, डेली बेसिस पे करती रहूँगी। ऐसा नहीं होगा आज किया तो 2 दिन बाद करेंगे, नहीं। मैं डेली के 4 घंटे अपने सिर्फ़ सोशल वर्क को देती हूँ और मैं डेली ये 4 घंटे दूँगी। अभी भी मैं आई थी ना आपके पास, तो बस पॉडकास्ट के लिए, तो मैं बस अपना इवेंट खत्म करके, अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो खत्म करके मैं आई थी। शाम तक आपको उसको य अपडेट यूट्यूब उस पे लिंक्डइन पे मिलेगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और लॉ के बाद एमएसडब्ल्यू में मास्टर्स इन सोशल वर्क करूँगी, ताकि मैं कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके और ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ तक पहुँच सकूँ और ज़्यादा काम कर सकूँ। बस, यही मोटिव है, यही इसको आगे लेके। तो मैं दुआ करूंगा कि आपका सर हर मुकाम पूरा हो, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत कम लोग करते हैं। मतलब मोर देन 0.001% ही लोग करते हैं जो राइट। हेल्प करने दे। अपने बारे में तो सब सोचता है। राइट। So, can you share a story or a group of a person or a group of people where you help and how it impacted you personally? जैसे होता होगा, जैसे आपने एक स्टोरी सुना है कि गले लगा लिया, तो कोई और ऐसी स्टोरी है जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट कर दिया था कि चलो आज मजा आ गया, फर्स्ट टाइम जब ऐसा लगा हो कि मेरी जो हेल्प है वो सच में सफल हुई। या सो जब मैंने अपना प्रोजेक्ट दाग शुरू किया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, तो मैं गाँव में थी उस टाइम, कुछ 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 चल रहा था जिस
जैसे हम गाँव गए थे, तो प्रोजेक्ट डार्क शुरू करने का वहाँ पे लड़की लक्ष्मी है उससे मिला था। उसका क्या कहते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन हुए होंगे, तो उसने कुछ गंदा कपड़ा यूज़ किया। उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा दाने और पूरा मतलब वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी उस एरिया की, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसके उस एरिया में। तो उसके से गाँव में थे हम लोग, तो वो हमारे घर के आस-पास जो है वो रिश्ते मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर गाँव में अगल-बगल रिश्तेदार ही हो जाते हैं। तो वो चाची रहती थी तो वो आई कहीं खुशी जल्दी चलो उनको पता था कि मैं इन सारे कार्य क्षेत्रों पे काम कर रही हूँ, तो वो आई मुझे बुलाने कि खुशी जल्दी चलो और देखो चल के। तो हम लोग मैं देखने गई तो मैंने सोचा अरे बाप रे! ये इतनी बुरी हालत है। तो हम लोग मैं उसको तुरंत लखनऊ लेकर निकल पड़ी कि अस्पताल लेके जाते हैं। बट रास्ते में थी ना तो मैं सोच रही थी कि आज तो चलो मैं इसकी मदद के लिए हूँ। दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो सैनिटरी पैड्स जिनके पास नहीं है और वो किसके पास होंगी? वो अस्पताल लेके जा रही हूँ, बेहतर से बेहतर इलाज करवाऊंगी इनका। बाकी योर वॉइस आपका ब्रेक कर रहा है। अच्छा, इज आई एम ऑडिबल नाउ? यस यस। या सो वो तो मैंने ये सोचा था कि मैं बाकी लड़कियों के लिए क्या करूँ, तो उसकी वजह से मैंने प्रोजेक्ट डार्क शुरू किया। प्रोजेक्ट डार्क शुरू करने के बाद मैंने जो पहला इवेंट किया था वो अपने गाँव में किया था 500 वुमेन्स के साथ। उन सबको पहले सेशन किया, उसके बाद उनको सैनिटरी पैड्स दिए और विद इन अ मंथ वहाँ पे एक सैनिटरी वेल्डिंग मशीन भी सेटअप करवाई, ताकि लोगों को पैड्स मिलना बंद ना हो, पैड उनको मिलती रहें उनकी पैड मैन नीड के हिसाब पैड वुमेन। से। पैड वुमेन। सो या हम लोगों ने ऐसे सेशन किया, ऐसे इवेंट किया एंड वो एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी क्योंकि बिकॉज़ वहाँ से आज मेरे गाँव में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द की मतलब उनको पैड्स यूज करने हैं, गंदा कपड़ा नहीं यूज करना है, कैसे इसको डिस्पोज करना है, क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटी है, सारी चीजें मैंने करी एंड आप कभी भी मेरे गांव विजिट करिए, आपको वहां पे दिखेगा कि हर लड़की को इस बारे में प्रॉपर नॉलेज। डू यू ऑल्सो नॉट फील कि यहाँ पे इस सेक्टर में हम लोग का एजुकेशन बहुत कम है? तो इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर एरिया बहुत है ही नहीं, कितने तो शेयर ही नहीं कर सकते अपने घर के बाहर या अपने घर के अंदर भी राइट, नहीं शेयर करते हैं। राइट। तो प्रॉब्लम यही है बिकॉज हम लोगों ने गांव में पहले करना क्यों शुरू किया? लड़की अपने पापा से नहीं बता सकती कि पापा मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे सैनिटरी पैकेट लाकर दो। कब आप सैनिटरी पैड की दुकान पे जाएंगे लेने तो उसको वो 50 पन्नियों में लपेट के देगा। यस। क्यों? इवन इन शहर में भी ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारी छोटी हाँ, छोटी टाउन्स में। हाँ। आप अगर आप वही आप बियर की कैन लेने जाओ तो ओपन ले जाओ और यस। अगर आप सैनिटरी पैड लेके जाओ तो कपड़े में लपेट के लेके जाओ। क्यों? मैं तो जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ वो अगर लपेटने भी जाता है तो मैं उसको सुना देती हूँ, क्यों भैया इसमें ऐसा क्या जो आप लपेट रहे हो? दैट इज लोग तो पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हो, फ्रीली घूम रहे हैं सही बात। और इसको छुपाने की क्या जरूरत है? राइट, सबको हो रहा है। आपकी अगर बहन है तो उसको भी वही चीज हो रही, मम्मी को भी हो रही, गर्लफ्रेंड को भी हो रही, वाइफ को भी हो रही, तो उसमें छुपाना क्या है? राइट, इट्स अ प्रोसेस। तो हम लोग इसको इतना छुपा के क्यों कर रहे हैं? तो उसी वजह से ये सेशन शुरू किया ताकि लोग अवेयर हो सके और हम इस चीज पे काम कर सकें। सो दैट्स नाइस। ओ कभी हम लोग एक सेशन भी करेंगे जहाँ पे हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे कि एटलीस्ट ऑनलाइन अगर इस चीज पे बात होगा तो और ज्यादा ऑडियंस को पहुंचेगा, जो भी मेरे ऑडियंस डेफिनेटली। आपके ऑडियंस हो उनको पहुंचेगा। थैंक यू। या डेफिनेटली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सो कैन यू या दैट्स इट, द लास्ट क्वेश्चन है एक। सो कैन ओके। यू गिव अस अ स्नीक पीक इनटू एक्साइटिंग ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन? तो अभी आगे चल के आगे क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट वैसा? ये मैं सस्पेंस रखूंगी, बहुत सारी चीजें इन डिमांड है जस्ट और हिंट, बहुत सारी हिंट हिंट। बहुत जल्दी यूथ के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाली हूँ। 10 to 15 डेज में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। सो अभी मैं बता दूंगी तो फिर अभी आपके चैनल से सबको पता चल जाएगा। बट या बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ लाइंड अप है, बहुत सारी चीजें करनी है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि जैसे सोच रहे हैं वो सारी चीजें वैसे जाएं एंड बस यही चीजें एंड हैं। वन मोर थिंग, जैसे आप तो ये अकेले नहीं कर रही होंगी, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे आपसे, तो कैसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं और वो भी हेल्प कर सकते हैं? जैसे मैं मान लो जुड़ना चाहता हूँ या फिर कोई या और जुड़ना चाहता है एज ए वॉलंटियर, तो हम्म मतलब मनी के थ्रू या फिर वो जैसे इन जनरल आके हेल्प करना चाहते हैं, तो कैसे वो आपसे या जुड़े?
या तो मैंने सबको बोल रखा है, मैंने तो अपना नंबर भी हर अपने साइट पर डाल रखा है, बिकॉज़ ये नंबर हम लोगों ने इसलिए पोस्ट किया है कि अगर आपको कैसे भी हेल्प करनी है, कैसे भी हेल्प करनी है, आपको अगर वॉलंटियरशिप करना है, तो आप वॉलंटियरशिप करिए, वॉलंटियरशिप नहीं करना है, तो आप हमें जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, आप करिए। अभी हम लोग बेसिकली लखनऊ में काम कर रहे हैं, बट वेरी सून मतलब जो हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको हम लोग दिल्ली में लॉन्च करेंगे और दिल्ली में हम अपनी न्यू ब्रांच मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोग हमारा ये है कि हम लोग एक्सपैंड करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। तो अभी लखनऊ है, लखनऊ के बाद दिल्ली में होगा, दिल्ली के बाद वाराणसी होगा, वाराणसी के बाद कानपुर होगा। तो ये सिटीज़ में मैं अपने ब्रांचेस डालने वाली हूँ पहले और लेट्स सी कि कैसा सबका रिस्पॉन्स रहता है और हम लोग मिल के कितनी अच्छी बड़ी टीम इकट्ठा कर लेते हैं। तो जिन लोग को भी जुड़ना है वो आके जुड़ सकते हैं। इनका वेबसाइट मैं बिल्कुल। नीचे लिंक डाल दूंगा। आप अपना एक बार वेबसाइट मुझे दे देना, सारा लिंक्स मैं डाल दूंगा जिसके थ्रू आपको वो कांटेक्ट कर सके और जुड़ सके। श्योर, तो मैं श्योर, श्योर। मैं अगले मंथ में भी लखनऊ आ रहा हूँ और वाराणसी डेफिन वृंदावन घूमने। तो मैं ओके। आपके साथ मिलके करूंगा काम। डेफिनेटली आप आएँ और आप हमारे साथ करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच खुशी फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड आई विश कि आपका जो जितना भी लाइंड अप प्रोजेक्ट है सारा पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so आगे much, भी Rohit. डिस्कशन Was करते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय। Yeah, it was great talking to you. Bye, Rohit. Thank you.